Third observation we are going to study now, and third observation is that effect of intensity अभी study करेंगे हम. Effect of intensity of radiation. Intensity of radiation. ठीक है. Intensity मतलब क्या रहता है? It is amount of energy of radiation passing through unit area per unit time. Energy passing per unit area per unit time. Intensity का unit क्या रहता है? Watt per meter square रहता है. So intensity of radiation मतलब intensity कम ज्यादा करके देखेंगे अभी क्या होता है. Now effect of intensity देखने के लिए once again क्या करना पड़ेगा? Frequency is kept above threshold value क्योंकि threshold value के above only electrons are emitted. So frequency तो हमें क्या करनी है? Threshold value के above रखनी है and intensity is gradually increased from lower value. तो क्या होता है देखेंगे. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए. So graph will be like this. On y-axis there is a current, photoelectric current जो गैल्वानोमीटर दिखाएगा. ज्यादा करंट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिए. ओके, उस सर्किट में एमीटर क्या दिखाएगा? जो माइक्रो एमीटर है वो क्या दिखाएगा? फोटोइलेक्ट्रिक करंट दिखाएगा. ज्यादा करंट मतलब क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं. ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे इमिटर से. ओके, सो इट इज फाउंड दैट on x-axis there is intensity of radiations. Here there is on y-axis there is a photoelectric current. अभी intensity zero है तो photoelectric current zero रहता है, and as intensity increases photoelectric current also linearly increases like this. Okay, so this is the graph. So conclusion is that as intensity increases photoelectric current increases. Okay, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखिए. When frequency of incident radiation, frequency of incident radiations, frequency of incident radiation is kept constant above threshold value, above threshold value. फ्रीक्वेंसी हमने क्या की है? थ्रेशोल्ड वैल्यू के अबव रखी है. ठीक है. When frequency of incident radiation is kept above threshold value and intensity is gradually increased. Intensity is gradually increased. Intensity को increase किया तो क्या होता है? Intensity is gradually increased. Intensity is gradually increased. Photoelectric current also increases. Okay, so this is the conclusion, this is the observation. Okay, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंडेंट रहता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड रहता है. इंटेंसिटी बढ़ता है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है. ठीक है. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैसा है देखिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अभी देखिए इंसिडेंट रेडिएशन का दो चीजें हम चेंज कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा इंटेंसिटी. ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स हैं. ठीक है. तो पहले तो रेडिएशन का क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे. फ्रीक्वेंसी कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू. फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू पर लगाएंगे और कांस्टेंट रखेंगे. एंड इंटेंसिटी उसका क्या करेंगे? सोर्स का इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे. तो जब इंटेंसिटी जीरो रहता है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो रहता है, और जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसा फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है. ओके, सो दिस मीन्स दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे. ओके, सो दिस मीन्स दैट मोर इंटेंसिटी मीन्स more intense beam produces more photoelectrons. Okay, so when intensity increases, more number of photons are emitted by the emitter. Okay, so that is
व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, क्योंकि करंट ज्यादा प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए इमिटर प्लेट से। ओके, व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस, more number of more number of more number of electrons are emitted. More number of electrons are emitted. That is the third conclusion. Okay, so this is the third conclusion. Next is fourth conclusion. Fourth observation abhi, sorry, this is I think fourth observation na. First related to frequency हो गया, second related to the instantaneous emission हो गया, third related to intensity हो गया, अभी fourth related to the potential difference between emitter and collector. Okay, effect of potential difference between emitter and collector. मतलब इमिटर और कलेक्टर के बीच में जो पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करके देखेंगे, चेंज करके देखेंगे, और करंट ज्यादा होता है या कम होता है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन उससे इमिट होते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इमिट होते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसका मीनिंग क्या रहेगा, लेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर चेंज किया तो क्या होता है, इसका अभी हम ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, नाउ अभी क्या करेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी शुड बी केप्ट कांस्टेंट। कहाँ पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखना है, अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू पे रखना पड़ेगा। ओके, कहाँ पे रखना पड़ेगा, अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी भी क्या करेंगे, एक सर्टन वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे। इंटेंसिटी भी सर्टन वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, इंटेंसिटी इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट टू सुटेबल वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, और अभी क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर। इमिटर और कलेक्टर के बीच में जो पीडी है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यहाँ पे देखिए कैसा है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इमिटर है, यहाँ पे कलेक्टर है। ठीक है, इमिटर और कलेक्टर के बीच में कितना पीडी है, ये कौन दिखाता है, ये वोल्टमीटर दिखाता है। वोल्टमीटर इज गोइंग टू शो, एंड वो पीडी चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रियोस्टेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो रियोस्टेट को एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर में देखेंगे तो पहला पीडी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब पीडी इनिशियली 0। अभी पीडी क्या करेंगे, 0 से ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, और उसका इफेक्ट इधर माइक्रो एमीटर में देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज होता है। मतलब पीडी ग्रेजुअली चेंज करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो माइक्रो एमीटर में किस तरह से चेंज होता है, ये हमें अभी चेक करना है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन दिखाएगा, कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये माइक्रो एमीटर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो पहला इफेक्ट कौन सा था, फ्रीक्वेंसी का। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी लोअर वैल्यू से हमने चेंज की तो क्या होता है, अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी ये माइक्रो एमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। एंड व्हेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रीच्ड, इट सडनली शोज सर्टन मैक्सिमम रीडिंग, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर हमने बढ़ाई इंसिडेंट रेडिएशन की, यहाँ पे जो सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी सर्टन वैल्यू के अबव रखने के बाद उतना ही डिफ्लेक्शन रहता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं चेंज होता है इस माइक्रोएमीटर का। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये माइक्रोएमीटर का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने के लिए सर्टन फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन कौन सा देखा, अभी देखिए जब रेडिएशन इंसिडेंट नहीं होता है तो माइक्रोएमीटर क्या करेगा, 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा।
ठीक है, रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं जब एट द इंस्टेंट व्हेन रेडिएशंस आर इंसिडेंट, ये माइक्रोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है। ओके, जिस मोमेंट को क्या करेंगे, रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे, उसी इंस्टेंट को माइक्रोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और जिस मोमेंट को क्या करेंगे हम, रेडिएशन इमीटर पे बंद करेंगे, ये इधर सोर्स है, इसका रेडिएशन चालू बंद कर सकते हैं हम, रेडिएशन बंद करेंगे इमीटर पे, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर सडनली डिफ्लेक्शन बंद करेगा। सो ये माइक्रोमीटर हमें दिखाएगा करंट कितना फ्लो होता है कि नहीं होता है, कब स्टार्ट होता है, कब बंद होता है, ये माइक्रोमीटर हमें दिखाने वाला है। और वोल्ट मीटर क्या दिखाने वाला है, ये हमें इमीटर और कलेक्टर के बीच में पीडी कितना है ये दिखाने वाला है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कांस्टेंट रखनी है, थ्रेशोल्ड के अबव, और इंटेंसिटी सम सुटेबल वैल्यू को हम कांस्टेंट रखेंगे। और यहाँ पे बाय यूजिंग रियोस्टैट क्या करेंगे, इमीटर और कलेक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करके माइक्रो एमीटर में क्या चेंज होता है ये हमें अभी देखना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीडी बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। व्हेन पीडी इज, यहाँ पे पहले तो वो सेंटेंस लिखना पड़ेगा, कौन सा सेंटेंस, that is, now frequency is kept constant, frequency is kept constant। ओके, फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कांस्टेंट रखनी है, अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू, above threshold value, and intensity is kept constant, intensity is kept constant to a suitable value, and potential difference between emitter and collector is gradually increased from lower value। ओके, लोअर वैल्यू क्या किया है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इमीटर और कलेक्टर के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से एडजस्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दैट रियोस्टैट। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ही रहता है, जब तक हम रियोस्टैट को चेंज नहीं करते तब तक पीडी चेंज नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। ओके, जब तक हम रियोस्टैट को एडजस्ट नहीं करते तब तक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कितना भी चेंज करो, इंटेंसिटी कितना भी चेंज करो, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर का रीडिंग चेंज होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग नहीं चेंज होगा। क्योंकि वोल्ट मीटर का रीडिंग कौन डिसाइड करता है, वहां का जो बैटरी और रियोस्टैट है वो दोनों वोल्ट मीटर का रीडिंग डिसाइड करते हैं। और माइक्रोमीटर का रीडिंग कौन डिसाइड करता है, वो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी फैक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रोमीटर का रीडिंग जब चेंज होता है तो अब वोल्ट मीटर का रीडिंग चेंज होने वाला है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो वोल्ट मीटर का रीडिंग अगर चेंज करना है तो हमें रियोस्टैट को, ओनली रियोस्टैट को एडजस्ट करके ही वोल्ट मीटर का रीडिंग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या दिखाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर दिखाता है, and it depends upon the value of resistance in the rheostat and the EMF of the battery। ओके, उस पर ही डिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई देता है, देखिए, ऑब्जर्वेशन इज लाइक दिस। देखिए, when potential difference between emitter and collector is gradually increased from lower value, it is found that
photoelectric current gradually increases reaches maximum value and remains constant as shown in figure. Okay, so diagram will be like this. ठीक है, देखिए जैसे पीडी हम बढ़ाना चालू करते हैं, करंट also starts increasing and it reaches a certain maximum value and thereafter it remains constant. मतलब पीडी is on the x axis and current, photoelectric current on the y axis. तो क्या होता है, पीडी बढ़ाने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू देयर आफ्टर. अभी यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पीडी इंक्रीज करने के बाद करंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ से आगे आफ्टर दिस कितना भी पीडी इंक्रीज करो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होता है. एंड इस करंट को क्या बोलते हैं हम, इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट. ओके, इस करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं. Okay, so this is one more important definition which can be asked into the board examination. Saturation current. Okay, saturation current मतलब क्या रहता है, it is the maximum value of photoelectric current for a particular value of intensity. So particular value of intensity के लिए करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू रहता है, उससे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी हालत में, मतलब कितना भी पीडी लगाओ, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, वो बढ़ता नहीं है. उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट बोलेंगे. ठीक है, सो सैचुरेशन करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी. देखिए डेफिनेशन ऑफ द सैचुरेशन करंट. Saturation current. सैचुरेशन करंट का डेफिनेशन एग्जाम में इस तरह से लिखना चाहिए. देखिए, when PD is gradually, potential difference is gradually changed, is gradually increased. When potential difference is gradually increased, photoelectric current gradually increases and reaches a maximum value. ये पहले सेंटेंस लिखना पड़ेगा और उसके बाद ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, maximum value of photoelectric current, maximum value of photoelectric current at a particular intensity. At a particular intensity is called as saturation current. Okay, is called as saturation current. So maximum value of photoelectric current at a particular intensity, certain intensity, particular intensity के लिए क्या हो जाएगा, उधर मैक्सिमम, एक सर्टन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज देयर, उससे ज्यादा
पर्टिकुलर इंटेंसिटी को उससे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी फ्लो नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? सैचुरेशन करंट बोलेंगे। ठीक है, अभी ये कंक्लूजन कहां पे कैसे आ गया? पीडी इंक्रीज करने के कारण। अभी सैचुरेशन करंट हो जाने के बाद क्या करेंगे? पीडी को अभी ग्रेजुअली कम करेंगे। ओके, पीडी को क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिए क्या किया है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस is gradually decreased. पोटेंशियल डिफरेंस इमीटर और कलेक्टर के बीच का जो पीडी है वो क्या करेंगे? हम उसको ग्रेजुअली कम करेंगे। तो ग्रेजुअली कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। पीडी कम किया तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलता है, अगर पीडी कम करके जीरो भी हुआ, पीडी इधर जीरो हो गया है ना, इस पॉइंट को पीडी जीरो भी हुआ तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होता है। ओके, नाउ पीडी इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, photoelectric current also gradually decreases। फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। एंड although PD becomes zero, current does not become zero, current doesn't become zero। ओके, मतलब पीडी जीरो हुआ तो भी करंट जीरो नहीं होता है। Okay, so this is one very important conclusion observation from this experiment. PD is gradually decreased. Okay, अगर PD हमने gradually decrease किया तो photoelectric current also gradually decreases. And यहाँ पे और एक चीज क्या दिखाई देता है? Although PD becomes zero, potential difference between emitter and collector becomes zero, current doesn't become zero. Okay, अभी मतलब पीडी जीरो हो गया तब भी क्या होता है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिटर प्लेट से निकल जाते हैं। ओके, बाहर निकल जाते हैं। अभी उनको स्टॉप करने के लिए, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीडी को अब रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स किस तरह से करते हैं? बाय यूजिंग दैट रिवर्सिंग की। ओके, सो टू मेक पीडी जीरो, ओके सॉरी, टू मेक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, टू मेक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो क्या करना पड़ेगा? zero polarities, okay, polarities of emitter and collector are reversed। इमिटर और कलेक्टर का पोलरिटी क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। आर रिवर्स्ड टू मेक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, पोलरिटी ऑफ इमिटर एंड कलेक्टर आर रिवर्स्ड। मतलब इनिशियली इमिटर क्या था? कैथोड था, तो इमिटर को क्या करेंगे? एनोड करेंगे। इमिटर एनोड मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपोज करेगा। पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद अपोजिशन क्यों हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को? क्योंकि पहले तो वो इमिटर था, पहले तो वो कैथोड था, अभी क्या हो जाएगा? वो एनोड बनेगा। इमिटर एनोड बनेगा मतलब इमिटर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इट कैन अपोज द आउटवर्ड मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एनोड में क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है। To make photoelectric current zero, polarities of emitter and collector are reversed. Okay, that is emitter is now anode, emitter is anode, and PD is gradually now increased. Now this reversing PD, ये क्या है? Reversed PD है ना?
now and a reversed potential difference is gradually increased till photoelectric current becomes zero. ठीक है, मतलब पोलरिटी रिवर्स करना है और वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर बाय यूजिंग रिवर्सस्टेट क्या करना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें इंक्रीज करना है. कब तक इंक्रीज करना है? जब तक गैल्वानोमीटर वो माइक्रो एमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है तब तक. ओके, मतलब माइक्रो एमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, कंप्लीटली हम स्टॉप करेंगे. ठीक है, और इसका ग्राफ में कैसा आ जाएगा, देखिए ग्राफ विल बी लाइक दिस. नो नेगेटिव और रिवर्सिंग पीडी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टिल photoelectric current becomes zero. So at this certain PD, okay, क्या हो जाएगा, photoelectric current becomes zero. and इस PD को क्या बोलेंगे हम, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे. ठीक है, सो we get one more important definition from the board point of view, that is stopping potential. stopping potential के लिए ही दूसरा वर्ड है कट ऑफ पोटेंशियल है. ओके, stopping potential is also called as कट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रिवर्सिंग पोटेंशियल है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली स्टॉप करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीटली जीरो करेगा. इसीलिए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या फिर कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है,